ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਪ ਨਾਟਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਤਾ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਧੱਕਾ ਉਤੋਂ ही साढ़े धक्का कर रही सरकार, ये चंगी गल नहीं है। कहते हैं ना, आंखों की बिल्कुल पट्टी बांध ली है, उससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और मैं अपने वीरों के साथ हूँ, मैं मुस्लिम परिवार से हूँ, मैं राजपूत चौधरी हूँ, लेकिन कहने का मतलब है हमारा ब्लड एक है और हम मरेंगे किसान के साथ, जिएंगे तो किसान के साथ। ये तो बात ये भी कह रहे हैं कि किराए पे बिठा रखे हैं, हम कह रहे हैं तुम अपने परिवार के लोगों को भेजो, हम देंगे उनका किराया। एक 2-4 दिन तो रहके देखो, रात दिन सेवा करो। ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਰ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪ ਇਹ ਦੇਖੋ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਵੀਰ ਜੀ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੌਲੀ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਪੜਾਉਂਜੀਆਂ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਪ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਟਰੈਕਟਰ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੂੰ, ਲਗਭਗ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਏ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਨਾਟਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੀਸਫੁਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ ਫਲਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਸ਼ੌਂਕੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਤਾਂ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪੌਣੇ ਕੁ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਘੁੰਮਣ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ, ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਮੱਗਰੀ? 2 ਲੱਖ ਹੀ ਦੱਸੇ ਟੋਟਲ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। 2 ਲੱਖ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵੀ 2 ਲੱਖ 'ਚ ਬਣਿਆ ਇਹ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਤਾ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਧੱਕਾ ਉਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? ਸਾਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੀ ਹਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ, कल जाएंगे। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ? नहीं जी, मैं यहीं की मेंबर हूँ, मेरा नाम शमीम चौधरी है और मैं 2 महीने 10 दिन से अपने सिंगू बॉर्डर हूँ, अपने वीरों की साथ कंधे से कंधा लगा के इनका हाथ बटा रही हूँ, इनकी बीच का ध्यान रख रही हूँ। कोई हमारे पंडाल में गलत आदमी खुफिया ना घुस जाए। जैसे कि हमारे पे आक्रमण कर दिया था कुछ गुंडे तत्वों ने, तो हम लोगों को बदनाम करने के लिए, हमारे धरने को बदनाम करने के लिए 26 तारीख में भी कुछ लोग पिंड नाल घुस गए और हमारे जाके झंडा फहरा दिया वहाँ।
तो हम लोगों को बदनाम करने के लिए गवर्नमेंट के पास बचाव के लिए कुछ भी नहीं है। वो अंधी और बहरी तो हो चुकी है, लेकिन उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। अब तो बिल्कुल कहते हैं ना, आंखों के बिल्कुल पट्टी बांध ली है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और मैं अपने वीरों के साथ हूँ। मैं मुस्लिम परिवार से हूँ, मैं राजपूत चौधरी हूँ, लेकिन कहने का मतलब है हमारा ब्लड एक है और हम मरेंगे किसान के साथ, जिएंगे तो किसान के साथ। और इतने हमारी बात को मोदी सरकार नहीं मानेगी। हम चाहे कितने भी दिन हो जाए, इससे भी ज़्यादा ठंडी पड़े, इससे भी ज़्यादा गर्मी पड़े, ना तो हमें गर्मी कुछ कर सकती, ना हमारा सर्दी कुछ कर सकती। अगर करेगा तो मोदी कर सकता है, क्योंकि बार बार हमारे लोगों पे अत्याचार कर रहा है, उन्हें उठा उठा के जेलों में डाल रहा है। ये उसकी अच्छी बात नहीं है। अगर हमारे बच्चे, हमारे बड़े उल्लड़बाजी कर रहे हैं तो हमारे पिंड से पूछो ना, हमारे जो मेंबर हैं, जो 40 हैं, उनमें पहले बात रखो ना कि तुम्हारे इन्होंने बच्चों ने ऐसी उल्लड़बाजी करी है। हम तो एक शांतिपूर्वक चल रहे हैं और चलते रहेंगे। आपको क्या लगता है, ये भी बोल रहे हैं कि ये किसान नहीं बैठे, इनको गुमराह करके यहाँ पे बिठाया गया, गुमराह किए? सुनिए, ये तो बात ये भी कह रहे हैं कि किराए पे बिठा रखे हैं। हम कह रहे हैं तुम अपने परिवार के लोगों को भेजो, हम देंगे उनका किराया। 1-2-4 दिन तो रह के देखो, रात और दिन सेवा करो। अगर तुम हमें किराए पे बिठाना चाहते हो, हम भूखे मर जाएंगे, गर्दन कटवा लेंगे, पर हम किराए के टट्टू नहीं हैं। जो किराए के तू लाए के आता है ना भीड़, वो भीड़ नहीं है। ये किसान वो लोग हैं कि गर्दन कटा लेंगे, सर नहीं झुका सकते। हम किसान हैं, छाती पाड़ के अन्न को उगाते हैं। अच्छा, अन्न नहीं होगा तो मोदी क्या चखेगा? हर चीज अन्न से बनती है, हर चीज। मीठा है तो वो भी जमीन से किसानी उगाता है, जहर है वो भी किसानी उगाता है। और तू ये बता, तू किसान के साथ पंगा क्यों ले रहा है? अपनी बात को, तेरे को हमने हाथ जोड़ के अच्छा समझ के, अच्छा प्रधानमंत्री समझ के तेरे को वोट दी थी। तेरे को ये वोट नहीं दी थी कि तू हमारे साथ इतना बड़ा तानाशाही करेगा कि हम तेरे नाम लेने से भी रोएंगे कि ऐसे गंदे आदमी का नाम ना लो हमारे साथ। ऐसा देश में प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। अगर प्रधानमंत्री की गरिमा समझता है तो अटल बिहारी वाजपेयी से शिक्षा ले ले। अगर मुख्यमंत्री की गरिमा लेना चाहता है तो साहब सिंह वर्मा से गरिमा ले लेता। लेकिन ऐसा तो कोई भी कठोर नहीं बना देश के अंदर जितना ये कठोर बनी। तो हमारी हाथ जोड़ के विनती है। और कुछ हमारी मीडिया हमारे से बार बार हमारे वीरों से सवाल करती है, तुम्हारे तो 10 मंच बन गए, हमारे 1 लाख मंच है पूरे भारत में। हमारी बात जो हमारा मेंबर, जो हमारा मंच का अधिकारी हमें आदेश करेगा सिपाहियों को, हमें वही वाणी बोलनी है। हमारी एक ही आवाज़ है, चाहे 1 लाख हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 10 हो, चाहे 2 हो। चाहे वो राकेश टिकैत का मंच है, चाहे वो सिंगू बॉर्डर पे भी उसका मंच है, सब जगह उसका मंच है। हम एक ही आवाज़ बोल रहे हैं पूरे भारत की। और मैं गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक कर रही हूँ ताकि मेरी आवाज़ को मेरी बहनें सुने। मैं 30 साल पहले, 40 साल पहले मैं दिल्ली में आ चुकी थी। अब मुझे ये नहीं पता था कि मेरे वीरों के साथ ये ऐसा काम करेगा। एक ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ। सेफ नहीं है, हम अपनी जगह तो सेफ हैं। कोई भारेगा, तत्वा बढ़ेगा तो हम उसे चक देंगे फट्टे, हम फट्टे चक देंगे। अब नहीं घुस सकता, वो आने के लिए डरेगा कि किससे मुकाबला ले लिया, वो सिर फिरे बैठे यहाँ। क्यों ये बिल रद्द नहीं हो रहे? क्यों? वो डरता है, वो तो ही नहीं समझ रहा है, वो अपनी इंसल्ट समझ रहा है। वो इंसल्ट नहीं है, गरीबों का भला है, किसानों का भला है। तेरा फिर नाम ले लेंगे, वोट तो हम तुझे दें नहीं, पर तेरे बारे में सोचेंगे ज़रूर कि चलो तैने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वोट नहीं देंगे। हम निक्के निक्के बच्चे भी नहीं वोट देंगे, क्योंकि मोदी का नाम जान चुके हैं, अमित शाह का नाम जान चुके हैं। आज जो हमारे पे 26 तारीख को जो ये हमारे साथ ये घटना घटाई है, ये भी इनकी साजिश है। किसकी? एक सन्नी देओल जैसे की, और जनक कितने लोग इसमें दलाल और
मैं क्या बताऊं, आरएसएस के कच्चाधारी घुस गए जिन्होंने हमें बदनाम कर दिया। हम उनमें के लोग नहीं हैं, हम तो बीबी एक राह के चलने वाले हैं। करता उनको भी पाबंदी लगा हैं? विदेश से ट्वीट करता उनको भी उनके अकाउंट बंद कर। वो तो हमारा सौभाग्य है, हमें लायक कर रहे बाहर के लोग, हमारा सौभाग्य है, हमें लायक कर रहे हैं। वो उनका दुर्भाग्य है कि उन्हें मतलब बुरा बताया जा रहा है। उनके लिए टीट कस रहे हैं लोग कि शर्म कर मोदी, शर्म कर, और थोड़ा नाल आ जा, शरीफ बन के नाल आ जा, और ये तो सब तेरे को क्षमा कर देंगे। और तू इनका पुत्र बन के जी जा, उनका पुत्र बन के उनके बीच में एक बात कर ले, मैंने रद्द कर दिए, और तुम अपने नाल जाओ, ले मैं लिख के देता हूँ। तू कहता है मैंने रद्द कर दिए, मैंने रद्द कर दिए, और तू लिख के देने में क्या परेशानी है? लिख के दे दे। और गद्दड़ भर्रा तो एक ही चाहिए ना, तो हमें भी तो अनपढ़ों को, तू हमारे किसानों को अनपढ़ बता रहा। आज किसान में अनपढ़ नहीं है, हम सब हम अनपढ़ हैं। हमारी औलाद जो निकी निकी है, जो 20-20 साल के 22-22 साल के जमाने, हमने फौज में दे दिए, हमने मिलिट्री को दे दिए, हमने दिल्ली पुलिस को दे दिए, वो भी तो हमारे वीर हैं, हमारे बच्चे हैं। आज तेरी जो रक्षा कर रहे हैं, क्या वो तेरी करेंगे? वो हमारी करेंगे। प्रशासन रोल अदा कर रहे हैं, उन्होंने बारे की कहोगे? वो दिखावटी है, वो तो उनकी बेचारों की मजबूरी है, उनकी मजबूरी है कि जो वो उसकी सेवा में भाग में लग रहे हैं, नहीं तो उनका अंदर से दिल दुखा हुआ है। हर आदमी का दुखा हुआ है, चाहे वो प्रशासन का है, चाहे वो मीडिया का है, और चाहे वो कोई भी है। हर आदमी, फौज का भी परेशान है इससे, हर आदमी परेशान है। और ये कहता है कश्मीर का परेशान नहीं, कश्मीर का भी परेशान है। मैं कह रही हूँ, और जेल में डालना चल, जेल भी तो इंसान के लिए बनी है। और मेरे वीर एक टुकड़ा छोड़ेंगे जब पेट भर जाएगा। सटे सानियल किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, बोले सानियल। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ, ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।